So final account of partnership firm. So first of all, final account is one of the important topic of 12th syllabus. It is a compulsory question for you. And second thing, if final account is perfect, you will be able to solve your next topics, that is dissolution of partnership, admission, retirement, because these all topics are interconnected. Okay. So what is final account first of all? See, accounting process starts with a transaction. Starts with what? Transaction. A transaction is then recorded in journal. Transaction कहाँ पे record होगा? Journal. From journal, we transfer it to ledger. In ledger, we will balance the ledger. Either we will get debit balance or credit balance. From ledger, it is transferred to a statement called as trial balance. And after preparing trial balance, we come to the last part of the account, and that account is called as final account. That account is called as final account. So what is final account? The account which is prepared at the end of the financial year is called as final account. What is final account? The account which is prepared at the end of the financial year. At the end of the financial year. Now why it is called as final account? See, it is an end account na. It is an end account, and that's why it is called as final account. अभी आपका जो एग्जाम होता है, जो लास्ट का एग्जाम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल एग्जाम. वैसे ही जो लास्ट का अकाउंट्स रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट. नाउ व्हाई फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड? फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड to know the profit or loss during the year. During the year, मतलब हर एक बिजनेसमैन को ना ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है. और अगर प्रॉफिट और लॉस जानना है तो बिजनेसमैन हैज टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. Until and unless he is not preparing final account, he will not be able to know whether his business is in profit or his business is in loss. This is the first reason why we prepare final account. Second reason for preparing final account is prepared to know the position of assets and liability. कि मेरे बिजनेस में पूरे साल में कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, अगर ये मुझे जानना है तो आई हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. थर्ड थिंग यू शुड रिमेंबर इज final account is prepared for a maximum period of 1 year. 1 year, that means what? For 12 months. That means every year we are supposed to prepare a final account. ऐसा नहीं कि 3-4 साल का मिलाकर एक साथ फाइनल अकाउंट बनाना. नो, एक साल खत्म हुआ, एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, वी आर सपोज टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. तो आप लोग फाइनल अकाउंट के बारे में क्या क्या याद रखोगे? फर्स्ट थिंग, फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर. Second, final account is prepared to know the assets and liabilities of the business. Third, final account is prepared for a maximum period of 1 year, that is 12 months. Okay. Now this year in 12th standard, you are going to study the final account of a partnership firm. What is a partnership firm? Minimum 2 persons are required to start a partnership firm who come together, who invest their capital and start the business. So in this year, you are going to study the final account of a partnership firm. Okay. Next. Accounts to prepare. Okay. So final account, ये मैं आपको अभी बताया मैंने. Final account is prepared at the end of the year. Final account is prepared to calculate profit or loss during the year. Final account is prepared to know the financial position of the business. ये 3 पॉइंट याद रखो. You can take screenshot during the lecture if you want. जिसने लिखा नहीं रहेगा उसने. Accounts to be prepared. Now in final account, we are supposed to prepare 4 accounts for 12th standard. That is trading account, profit and loss account, capital account and balance sheet. तो ये 4 अकाउंट्स हम लोग को बनाने का है दिस ईयर. कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ओके, सो दिस आर द 4 अकाउंट्स यू आर सपोज्ड टू प्रिपेयर दिस ईयर फाइनल अकाउंट. सो अभी मैं एक एक अकाउंट्स को एक्सप्लेन करूंगा. वो अकाउंट क्यों बनाते हैं, उस पे क्या क्या आइटम्स आते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. ओके, सो स्टार्टिंग विथ ट्रेडिंग अकाउंट. Starting with trading account. Now what is trading account and why trading account is prepared? See, trading account is prepared to calculate the gross profit or gross loss of the business. To calculate the gross profit or gross loss of the business. Now what is gross profit? Gross profit is the difference between cost and sales. Gross profit is the difference between cost price and selling price. अभी आप सबको प्रॉफिट क्या है मालूम है कि प्रॉफिट मतलब मेरा फायदा है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या?
सी ग्रॉस प्रॉफिट मतलब it is a difference between the cost of production and selling price of that product. It is called as cost gross profit. अब अगर फॉर एग्जांपल समझो आपने कैडबरी लिया, अब ये कैडबरी कितने का आता है? 20 रुपीज का आता है, उसका सेलिंग प्राइस 20 रुपीज का है, लेकिन उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है फैक्ट्री में वो 5 रुपीज रहेगा या तो 6 रुपीज रहेगा. समझो 5 रुपीज है, मतलब 5 रुपीज का कैडबरी ऑफ फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ, वो कस्टमर को कितने में बेचा? 20 रुपीज में बेचा. दैट मीन्स एक कैडबरी बेचने के बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कितने का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ? 15 रुपीज का. तो ये 15 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट है माय डियर्स. सो ये बिजनेसमैन का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये 15 रुपीज बिजनेसमैन के जेब में जाने वाला नहीं है. ये 15 रुपीज सिर्फ डिफरेंस है. किसमें का डिफरेंस है? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. यू कैन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्राइस. क्यों नहीं जाएगा 15 रुपए बिजनेसमैन के जेब में? बिकॉज ये 15 रुपए में से बिजनेसमैन को अभी एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना है, ऑफिस का एक्सपेंसेस पे करना है. वो सब पे करने के बाद जो पैसा बचेगा दैट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट. एंड नेट प्रॉफिट इज द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो आई होप सबको ग्रॉस प्रॉफिट समझा क्या है. ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? डिफरेंस है. इट इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेल. समझा सबको? यस माय डियर्स, प्लीज मैसेज. All of you understood what is gross profit? Okay, so it is the difference between cost price and selling price. Now rules. अभी rules क्यों important है? Why rules are important? बराबर है. आपको जो फाइनल अकाउंट में जो क्वेश्चन आएगा, आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा रहेगा, आपको फाइनल अकाउंट में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट पार्ट में क्या होगा? ट्रायल बैलेंस आएगा, एंड सेकेंड पार्ट में आपको आएगा एडजस्टमेंट्स. ये आपको मालूम रहेगा, आपने 11th पे देखा रहेगा. ट्रायल बैलेंस आता है और एडजस्टमेंट आता है. एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ट्रायल बैलेंस, अभी ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स दिया है डेबिट और क्रेडिट साइड में, उसको हम लोग को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है. हमारे पास कितने अकाउंट्स हैं? 4 अकाउंट है. कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कैपिटल एंड बैलेंस शीट है. तो ये ट्रायल बैलेंस में से कौन सा आइटम कौन से अकाउंट में आएगा, ये हमको 100% श्योर होना चाहिए. इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए. अगर इसमें मिस्टेक हुआ तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा. सो वी शुड नो कि विच आइटम विल बी रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी विल स्टडी द रूल्स. तो ये रूल्स हम लोग को बताएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आने वाला है. ये रूल्स हम लोग को बताएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आने वाला है. ओके, सो विल स्टार्टिंग द रूल्स. रूल नंबर 1, all items related to stock of goods, any item that is related to stock of goods, that all items are recorded in trading account. मतलब जो भी आइटम है ना स्टॉक ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. मतलब जिसके वजह से स्टॉक ऑफ गुड्स बढ़ेगा या स्टॉक ऑफ गुड्स कम होगा, म्हणजे स्टॉक ऑफ गुड्स वाढणार किंवा स्टॉक ऑफ गुड्स कमी होणार, हे सगळे आइटम कोणत्या अकाउंटला येतात? ट्रेडिंग अकाउंटला येतात. ओके, तो इसमें क्या क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स, purchase return, sales return. These all items are related to stock of goods, and that's why these all items, if given in trial balance, will be transferred to which account? Trading account. Which account? Trading account. Okay. अभी अगर समझो आपको एग्जाम में आया goods destroyed by fire, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्योंकि it is related to stock. Goods taken by the thieves, goods distributed as a free sample, goods withdrawn by the partners for personal use. See, all these items will be recorded in trading account first. Why? Because goods जल गया, goods partner लेके गया, goods हम लोग ने freely distribute किया, कुछ भी हुआ, goods business में से गया ना, stock कम हो गया ना, तो anything that is related to stock of goods, जिससे भी stock बढ़ेगा या stock कम होगा, वो सब item trading account में आता है. ये बात याद रखो. This is rule number 1. Okay. Rule number 2, all expenses related to purchase of goods. Purchase of goods के लिए जो भी खर्चा होता है वो सब expenses हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं. मतलब गुड्स परचेस करने के लिए होने वाला खर्चा. अभी हम लोग बहुत बार है ना गुड्स परचेस करने के लिए होने वाले खर्चे को कंसीडर करते नहीं है, बट वी हैव टू कंसीडर इट. हम लोग को वो कंसीडर करना पड़ता है क्योंकि हम लोग ने गुड्स परचेस करने के लिए खर्चा किया है. अब इसका एग्जांपल देने का तो फॉर एग्जांपल समझो शाम को मेरा पार्टी है, मुझे पार्टी में नया शर्ट पहन के जाना है, बराबर है. मैं अपने घर से नीचे उतरा, रिक्शा पकड़ा, रिक्शा से मैं स्टेशन गया, रिक्शा वाले को 20 रुपीज दिया, बराबर. मैंने एक नया शर्ट परचेस किया 1000 रुपीज का, अच्छा वाला,
वापिस रिक्शा पकड़ा, वापिस मेरे घर में आया, वापिस रिक्शा वाले को 20 रुपीज दिया, तो वो शर्ट मुझे 1000 में गिरा क्या 1040 में गिरा? व्हाट डू यू थिंक? कॉस्ट ऑफ द शर्ट इज 1000 और 1040, क्या लगता है आपको? बोलो। हाँ एग्जैक्टली, इट इज 1040 ना, इट इज 1040। क्यों 1040? क्योंकि 1000 का शर्ट है, 1000 का शर्ट है, एंड 40 रुपीज मैंने वो शर्ट परचेस करने के लिए खर्चा किया ना, तो ये जो परचेस का खर्चा है इसको बोलते हैं परचेस एक्सपेंसेस, एंड ऑल द परचेस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड बाय अ बिजनेसमैन इन विच अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। विच अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसमें क्या क्या आने वाला है? import duty, carriage inward, octroi, freight. These all expenses are related to purchase of goods and it will be recorded in trading account. Import duty purchase का expense है, carriage inward मतलब transportation cost of goods purchase, transportation cost of goods purchase. Octroi is a tax for goods purchase. Freight मतलब when the goods are transported by railway, इसको बोलते हैं freight expenses, बराबर है? तो ये सब एक्सपेंसेस जो परचेस से रिलेटेड है ना, ये सब वी आर सपोज टू राइट इन ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, रूल नंबर 3, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। Definition of direct expenses: the expenses which are directly related to the production of goods are called as direct expenses. मतलब जो expenses प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, जो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए रिलेटेड है, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। अभी फॉर एग्जांपल, एवरी कंपनी और एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज 2 यूनिट्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का 2 यूनिट होता है, एक होता है फैक्ट्री और एक होता है ऑफिस। फैक्ट्री कौन सा प्लेस है? जहां पे गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ऑफिस कौन सा प्लेस है? जहां पे वो गुड्स को बेचा जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है समझो, तो कार कहां पे मैन्युफैक्चर होगा? फैक्ट्री में। और उसको बेचने का काम कौन करेगा? ऑफिस का सेल्स टीम करेगा, बराबर है ना? तो फिलहाल ऑफिस को बाजू में छोड़ो, फैक्ट्री में कार बनाने के लिए जो भी खर्चा होगा, बराबर है, मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो सब प्रोडक्शन का खर्चा है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और वो सब खर्चा is a factory expenses, or you can call it as a direct expenses, and all the direct expenses are recorded in trading account. तो इसमें क्या क्या आएगा? wages, power and fuel, oil and gas, factory rent, factory insurance, raw material. That means anything that is related to factory. For example, wages कहां पे होता है? फैक्ट्री में, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्योंकि फैक्ट्री में जो पगार मिलता है उसको वेजेस बोलते हैं, और ऑफिस में जो पगार मिलता है उसको सैलरी बोलते हैं। Power and fuel, oil and gas, it is related to factory. Factory rent, factory insurance, raw material, it is related to factory. So whatever is related to factory will be recorded in trading account. That means what? Rule number 1, all items related to stock of goods, उसमें क्या क्या आता है? Opening stock, closing stock, purchase, sales, purchase return, sales return. सेकेंड वाला क्या है? ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, फ्रेट। थर्ड क्या है? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मींस द एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेफिनेशन याद रखो, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, ऑयल एंड गैस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, रॉ मटेरियल। अगर इनमें से कोई भी आइटम आपके ट्रायल बैलेंस में आया तो उसको चुपचाप ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देने का। Understood trading account, my dears? Yes or no? Everybody please message yes or no. First, all of you, I want message from all of you. Please message fast. Okay, so trading account is clear to all of you. So we are moving ahead. हमारा दूसरा अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ लिसन, नाउ व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? सबसे पहले तो याद रखो, प्रॉफिट एंड लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को समझने वाला है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है, फर्स्ट थिंग। सो व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट. Profit and loss is a nominal account. Why it's a nominal account? Because in this account we are supposed to record all the incomes
एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ना बिजनेस का जो भी इनकम्स है, जो भी एक्सपेंसेस है, वो सब रिकॉर्ड होता है। एंड दैट्स व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएगा, क्रेडिट साइड में इनकम्स एंड गेन्स आएगा। डेबिट में क्या आएगा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में क्या आएगा? इनकम्स एंड गेन्स। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल ही है ना, गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसके लिए डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आएगा, क्रेडिट साइड में इनकम्स आएगा। Now, why profit and loss account is prepared? Profit and loss account is prepared to calculate the net profit or net loss during the year. To calculate the net profit or net loss. मैंने अभी आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेसमैन का एक्चुअल प्रॉफिट है क्या माय डियर्स? नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेसमैन का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। बिजनेसमैन का एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट है। बराबर है, बिजनेसमैन नेट प्रॉफिट एंजॉय करने वाला है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट होने के बाद जो भी खर्चा है एडवर्टाइजमेंट का, सैलरी का, गवर्नमेंट टैक्सेस, वो सब माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो नेट प्रॉफिट है। एंड नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज एंजॉयड बाय द बिजनेसमैन। ओके, तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्या याद रखोगे? फर्स्ट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। Second, on debit side, all expenses and losses. On credit side, incomes and gains. Third, it is prepared to calculate net profit or net loss. Profit and loss का rules for profit and loss account. ट्रेडिंग अकाउंट के उल्टा है, प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के उल्टा है। ट्रेडिंग अकाउंट का रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 2, ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस, मतलब परचेस को होने वाला खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस का रूल नंबर 1 क्या है? ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स। मतलब अगर हम लोग को मार्केट में गुड्स बेचना है और वो गुड्स बेचने के लिए जो भी खर्चा होता है, दैट ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। माय डियर्स, अगर मुझे मार्केट में कुछ भी नया प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ेगा, मुझे खर्चा करना ही पड़ेगा। अगर समझो ना मैंने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, बराबर है, और उसको मैं घर में बैठ के बोला कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, तो कोई खरीदेगा क्या? नहीं। प्रोडक्ट मार्केट में कब बिका जाता है? कस्टमर्स प्रोडक्ट को कब परचेस करते हैं? जब जब क्या होगा? उसका प्रॉपर मार्केटिंग होगा, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होगा, प्रॉपर वो कस्टमर तक पहुंचा जाएगा, तभी तो प्रोडक्ट मार्केट में बिका जाएगा ना। बराबर है। अभी पबजी मोबाइल जो अभी गवर्नमेंट ने बैन किया, वो इतना फेमस क्यों हुआ? उसका प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट हुआ, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुआ, स्टूडेंट्स लोग एकदम उसको सर पे लेके बैठ गए, पबजी 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 करके, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन पबजी इतना फेमस हो गया। अभी पबजी तो बैंड हो गया। अभी समझो अगर इंडियन मार्केट में, समझो इंडियन कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कोई नया गेम मार्केट में लाया, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अभी तो इंटेंशन बहुत हाई है पब्लिक का, क्योंकि उनको पबजी जैसे कोई और गेम चाहिए, क्योंकि सबको आदत पड़ गई है। सो दिस इज द राइट टाइम। अगर वो गेम अभी लॉन्च किया और उसका प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट किया तो फेमस हो जाएगा। बराबर है, बराबर है। हमारा जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में जा रहा है मिलियंस ऑफ एप्स, लेकिन सब ऐप हम लोग को शायद मालूम भी नहीं रहेगा। 2 या 3 ऐप ऐसा होता है ना कि जो फेमस हो जाता है, जैसे टिकटॉक एक फेमस हुआ था, पबजी फेमस है। देयर आर वेरी लिमिटेड ऐप, एक फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो फेमस हो जाता है। फेमस क्यों होता है? क्योंकि उसका पब्लिसिटी वैसा होता है ना। दैट मीन्स व्हाट, कोई भी बिजनेस हो, हम लोग को पब्लिसिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग खर्चा नहीं करोगे ना तो आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, ये बात हमेशा याद रखो। इफ वी वांट टू सेल समथिंग इन द मार्केट, हम लोग को खर्चा करना ही पड़ेगा, हम लोग को खर्चा करना ही पड़ेगा। आप लोग फेसबुक, आपका अकाउंट ओपन करके देखो फेसबुक का, आपको 10-12 ऐड दिखेंगे रोज के रोज। आज कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। अभी तो डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, एवरीबॉडी सेलिंग समथिंग। अभी फेसबुक पे ऐड करना, उसका भी खर्चा होता है ना, यू हैव टू पे फॉर इट। फेसबुक के फुकट में ऐड नहीं करने वाला अपना। सो दिस इज द थिंग कि बिजनेस में अगर कोई गुड्स बेचना है तो उसके लिए खर्चा करना पड़ता है, उसको बोलते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। दैट इज कॉल्ड एज selling expenses, and all the selling expenses are recorded in which account? Profit and loss account. Which account? Profit and loss account. तो गुड्स बेचने के लिए क्या क्या खर्चा होता है? फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट ड्यूटी। सी, इंपोर्ट ड्यूटी इज रिलेटेड टू परचेस, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट में आया। एक्सपोर्ट ड्यूटी इज रिलेटेड टू सेल्स, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। डिस्काउंट, आज अगर मार्केट में डिस्काउंट दिया तो लोग तो टूट पड़ेंगे ना, लोग तो टूट पड़ेंगे गुड्स परचेस करने के लिए। बराबर है कि नहीं है? सो दिस इज अ थिंग कि डिस्काउंट अगर मिलता रहेगा तो पीपल्स विल गो एंड परचेस इट। अभी कल ही मैं विवियाना मॉल में गया था, एस्टरडे ओनली। अभी इतना कोविड का प्रॉब्लम है, तभी भी लोग टूट पड़ते विवियाना मॉल में। यू विल नॉट बिलीव कि लग नहीं रहा था कि कोविड का सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि मॉल में बहुत सारा डिस्काउंट चालू है और लोगों को मालूम है अभी इतने महीने के बाद अगर मॉल खुल रहा है
तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो अनसोल्ड स्टॉक है उसको बेचने के लिए डिस्काउंट ही लगाना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई अगर डिस्काउंट दिया ना तो सेल 100% बढ़ने वाला है। एडवर्टाइजमेंट, अभी मैंने बोला एडवर्टाइजमेंट के सिवा हम लोग कोई भी गुड्स बेच नहीं सकते। कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड किधर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज आउटवर्ड किधर आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, बिकॉज कैरेज इनवर्ड इज रिलेटेड टू परचेस एंड कैरेज आउटवर्ड इज रिलेटेड टू सेल्स। ये डिफरेंस है दोनों में। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। सेल्समैन सैलरी, तो whatever is related to sales, whatever is related to selling of goods, that all will be recorded in profit and loss account, my dears. Rule number 2, ट्रेडिंग अकाउंट का रूल नंबर 3 क्या था, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इधर क्या आएगा, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मतलब क्या, ऑफिस एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मतलब क्या, फैक्ट्री। मतलब इसको सिंपल वर्ड्स में अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखने का कि जो भी फैक्ट्री का खर्चा है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और जो भी ऑफिस का खर्चा है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। आई रिपीट, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, all office expenses are recorded in profit and loss account. That is called as indirect expenses. What is the definition of indirect expenses? The expenses which are not related to the production of goods. The expenses which are not related to the production of goods are called as indirect expenses. मतलब जो भी खर्चा प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अभी ऑफिस में कोई प्रोडक्शन का काम होता नहीं है, मतलब ऑफिस में होने वाला खर्चा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना। इसमें क्या क्या आएगा, सैलरी, मैंने आपको पहले ही बताया। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, वेजेस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, सैलरी, बिकॉज सैलरी इज गिवन इन ऑफिस एंड वेजेस आर गिवन इन फैक्ट्री। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑडिट फीस, इनकम टैक्स, ऑफिस रेंट, office electricity, office insurance, whatever is related to office will be recorded in profit and loss account, my dears. Okay, rule number 3, all incomes are recorded on credit side. मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस, बराबर है। तो जो भी इनकम है वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आता है। कौन से साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आता है। कौन से साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आता है। उसमें क्या क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, anything related to income will be recorded in profit and loss account. Understood, my dears? समझा सबको? Any doubts? Yes? Please message fast. Any doubts? सबको समझ रहा है ना? All of you please message. सबका मैसेज आना चाहिए मुझे. Yes? Fast. जल्दी टाइप करो. सबको मैसेज नहीं आया है, फास्ट. समझा कैसे, मुझे सबको समझाए कि नहीं समझाए? ओके, आगे बढ़ते हैं. थर्ड वन इज कैपिटल अकाउंट. नाउ व्हाट इज कैपिटल अकाउंट and why this account is prepared? Okay, see, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इन 12th स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी द फाइनल अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पर्सन होंगे एज अ पार्टनर. तो अभी 2 जन मिलके बिजनेस करेंगे तो दोनों क्या करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, बराबर है. अभी कोई पार्टनर समझो ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कोई कम करेगा, किसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, कोई बिजनेस में से ड्रॉइंग करेगा, कोई नहीं करेगा. सो ये सब जो रिलेटेड टू पार्टनर्स है, whatever is related to partners, that all is recorded in capital account. मतलब capital account is opened to record all the income and expenses related to partners. मतलब whatever is related to partners, जो भी partners से related है वो सब capital account में आता है. Okay, so this account is open to record all items related to partners. इसमें क्या क्या आएगा, इसमें सिर्फ 4 ही आइटम आता है. इसको 4 ही आइटम को याद रखो. कौन सा 4 आइटम आता है, पार्टनर्स सैलरी आता है, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ओनली दिस 4 आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट. कौन सा है, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. समझा सबको? यस माय डियर्स, अंडरस्टूड अप टू दिस ऑल ऑफ यू?
Understood up to this? Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. The last one is balance sheet. Now, what is a balance sheet? First of all, please keep in mind, balance sheet is not an account. Balance sheet is not an account. Balance sheet is a statement. Balance sheet is a statement showing the financial position of the business. Balance sheet is a statement showing the financial position of the business. That is the position of assets and liabilities. Position of assets and liabilities. मतलब business में कितना assets है, business में कितना liabilities है, अगर ये मुझे जानना है, इफ आई वॉन्ट टू नो ऑल दिस, मुझे क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा. बराबर है. तो बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है. बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है. बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. सो एज इट इज नॉट अ अकाउंट, बैलेंस शीट को डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होता है. याद रखो, बैलेंस शीट को कभी भी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड नहीं होता है. बैलेंस शीट को दो साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज लायबिलिटी, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज एसेट्स. Left hand side is called as liability, right hand side is called as assets. Means on left hand side we will record all the liabilities of the business, and on right hand side we will record all the assets of the business. बराबर है. तो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? सिंपल है, एसेट्स और लायबिलिटी. अभी मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, डेटर, इन्वेस्टमेंट, देन ट्रेडमार्क, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोटर व्हीकल, ये सब एसेट्स में आएगा. Then bank loan, creditors, outstanding expenses, business loans, mortgage loan, all this will be recorded on the liability side. And last में बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए. क्या होना चाहिए? टैली. तो हमारे पास कितना अकाउंट्स है? 4 अकाउंट्स है. कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल एंड बैलेंस शीट. आई होप अभी सबको समझा है चारों अकाउंट्स. अभी ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या कैलकुलेट करते? ग्रॉस प्रॉफिट. ध्यान से सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या कैलकुलेट करते? ग्रॉस प्रॉफिट. वो ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने का प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करने का, एंड प्रॉफिट एंड लॉस विल गिव अस नेट प्रॉफिट. वो नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में. फिर कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का नया कैपिटल बैलेंस निकलेगा, एंड दैट न्यू कैपिटल विल बी ट्रांसफर्ड टू लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. बराबर है. एंड इन द एंड बैलेंस शीट मस्ट टैली. अगर बैलेंस शीट टैली हुआ, then you will get full marks. Understood all of you? Yes, my dears.